Assalamu alaikum, and how are you students? I hope you all are fine at your home. Do you enjoy the welcome back song? Isn't it good? Yeah, it's really nice. It's a funny, very puppy song. Okay, so once again, welcome back to the general science subject. Students, as I already informed you on a group that we merged the two terms, first and second. So, this year we have midterm and final term. Okay? There is no first term and no second term. In midterm, we have already covered the human body, health and safety, water, and light and shadow. Now we add one more unit, that is solid, liquid, and gases. So let's start with the new topic. In today's presentation, we are going to cover the following topics: natural resources, man-made materials, material can change shape. Okay, students? In the next presentation, we will cover the following topics: matter, states of matter, changing states of matter. Okay? Let's start with the topic natural resource. Different materials are used to make different objects that we use in our daily life, like coal, soil, trees, metal, water. Some materials come from plants and animals, and some material we found under the surface, like minerals. These are natural resources. Let's read the definition. A natural resource is something that is found in nature and can be used by people. It includes air, water, soil, forest, minerals, natural gas. खुदा ने हमें कुछ चीज़ें ऐसी दी हैं, कुदरती चीज़ें, जो हम डायरेक्ट अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल वाटर, पानी के बगैर हम रह नहीं सकते. हवा, एयर, इसके बगैर हम रह नहीं सकते. ठीक है. ट्रीज़ जो कि हमें खाना प्रोवाइड करते हैं. कुछ एनिमल्स जो कि हम खाते हैं. ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. तो ये कुदरती चीज़ें खुदा ने ऐसी दी है, ठीक है, जो कि हमें नेचुरली मिलती है और हम उसे डायरेक्टली यूज़ करते हैं. उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज. ओके स्टूडेंट्स? As we have already discussed about the man-made materials in the unit light and shadow, let's read the definition. We use natural material to make other materials are called man-made material. Chair, glass, window, key, cloth, plastic, leather jacket, rubber, clay are man-made material. ठीक है, ये वो मटीरियल्स हैं जो कि हम यूज़ करके नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उसे यूज़ करके हम अपनी सहूलत के लिए, अपनी फिजिबिलिटी के लिए, अपनी फैसिलिटी के लिए जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं और फिर हम उसे अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल पेपर, हम लिखने के लिए पेपर यूज़ करते हैं, वो वुड से बनता है. वुड क्या है? नेचुरल रिसोर्स है. उस नेचुरल रिसोर्स से हम एक मैन मेड चीज़ बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड पेपर, ताकि हम उस पर लिख सकें, उस पर हम काम कर सकें. ठीक है, तो ये होते हैं मैन मेड मटीरियल्स जो कि हम नेचुरल रिसोर्सेज से मैन मेड रिसोर्स पर आते हैं और फिर हम उसको अपनी यूज़ के लिए, अपनी फिजिबिलिटी के लिए, अपने काम के लिए, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं. ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू द एक्टिविटी. But before we start, I would like to request you to please much watch this activity very carefully and understand your concept, because this is your homework and you have to do it at home. Okay? Now look at the question first. Label the pictures and write N means natural or M means man-made in the green square. Students, आपने करना यह है, पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है, उसका नाम लिखना है. ठीक है, और एन और एम लिखना है ग्रीन बॉक्स में. एन का मतलब होता है नेचुरल और एम का मतलब होता है मैन मेड.
आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये नेचुरल है प्रोडक्ट या मैन मेड है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. विच पिक्चर इज दिस? Cotton? Yes, it is. So tell me, is it man-made or natural material? It is natural material, that's right. Now look at the second one. This is very easy, students. We have already done in the previous slide as an example. This is the paper, okay? And now tell me, is this man-made or natural? This is the man-made, very well, okay? The next one is wood. अब बताएं वुड क्या है, नेचुरल है या मैन मेड है? नेचुरल है, एक्सीलेंट. द नेक्स्ट वन इज मेटल. मेटल क्या है? मेटल एक्चुअली मैन मेड है. आप कहेंगे मिस मैन मेड कैसे हुआ? एक्चुअली हम लोग जब अंडर द ग्राउंड बात कर रहे थे कि अंडर द ग्राउंड बहुत सारे मटेरियल्स हमें मिलते हैं, तो वो सब मिक्स होते हैं, हम उसको रिफाइन करते हैं, हम उसको फिनिशिंग प्रोडक्ट देते हैं. मेटल इज़ अ फिनिशिंग प्रोडक्ट जो कि मैन मेड बनाया जाता है, ठीक है, इसीलिए हम इसे मैन मेड कहते हैं, ठीक है. ये एक फिनिशिंग प्रोडक्ट है. अगर आप इसका रॉ फॉर्म देखेंगे ना तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि जो अंडरग्राउंड अंडर द सरफेस हमें मिनरल्स मिलते हैं उसमें सिर्फ मेटल नहीं होता है, उसमें नेचुरल गैस भी होती है, उसके अंदर बहुत सारे दूसरे मिनरल्स होते हैं, ठीक है. फिर उसको जो है वो रिफ़ाइन किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर हमारे यूज़ के लिए मटेरियल बनाया जाता है, ठीक है. सो मेटल इज़ अ मैन मेड. द नेक्स्ट वन इज़ पेट्रोलियम. क्या है पेट्रोलियम? इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट, ओके. द नेक्स्ट वन इज़ फैब्रिक. फैब्रिक इज़ मैन मेड, ऑफ कोर्स, राइट. देन द नेक्स्ट वन इज़ रॉक. Rock is a natural material, okay. Then plastic. Plastic is man-made. As I told you earlier, students, जब अंडर द सरफेस अंडरग्राउंड से जब चीज़ें निकाली जाती है तो उसमें बहुत सारी मिक्सिंग होती है, उसको प्रोसेस करके, उसको रिफ़ाइन करके, उसको जो है वो फैक्ट्री में ले जाया जाता है, उसको जो है वो बहुत सारी मशीन से गुजारा जाता है और फिर एक फ़ाइन प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता है. So plastic is a fine product and is man-made, okay. Then wool. Wool क्या है? Natural product है, right. And the last one is sand. Sand is again the natural product. Very well, class. Now come to the next topic, that is material can change shape. Let's read the definition first. We use materials to change its shape and make things by twisting, bending, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वैशिंग दैम. जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई भी नई प्रोडक्ट को बनाने के लिए या कोई नई चीज़ फॉर्म करने के लिए, तो हम समटाइम्स उसे ट्विस्ट करते हैं, बेंड करते हैं, स्ट्रेच करते हैं एंड स्क्वैश करते हैं. ट्विस्ट का मतलब होता है मोड़ना, किसी चीज़ को मोड़ना या उसे घुमाना, उसे ट्विस्ट कहा जाता है. बेंड करना मीन्स सप्रेस्ड करना, दबाना उसे. स्ट्रेच करना मीन्स खींचना, ठीक है, किसी भी, जैसे आप रबर को स्ट्रेच करते हो ना, खींचते हो क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी होती है, उसको खींचना, ठीक है. एंड द स्क्वैशिंग दैम. स्क्वैशिंग का मतलब होता है कुचल देना या उसको एकदम बिल्कुल जो है वो हम अपनी मुट्ठी में बंद कर देते हैं ना, इस तरह से, ठीक है. तो जब आप कोई मैन मेड चीज़ बना रहे होते हैं, फैक्ट्री के अंदर जब चीज़ें बनती है तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोसेस करते हैं, ठीक है. जब हम नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसको प्रोसेस करने जाते हैं तो हम ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं टू मेक अ न्यू थिंग, ठीक है. और जब वो नई शेप आती है, वो नया प्रोडक्ट बनता है तो हम उसे अपने यूज़ में ले आते हैं, ठीक है. तो मटेरियल्स जो है वो अपना शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है. ओके क्लास, लेट्स डू द सेकेंड एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू मटीरियल कैन चेंज शेप. लेट्स रीड द क्वेश्चन. आइडेंटिफाई एंड राइट द करेक्ट शेप. आपको पिक्चर आइडेंटिफाई करनी है कि पिक्चर में क्या पोजीशन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ, उसको बेंड कर रहा है, स्क्वैश कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है या स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है. और आपको आइडेंटिफाई करके उसका नाम नीचे लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1. व्हाट हैपनिंग इन द नंबर 1 पिक्चर? इन द नंबर 1 पिक्चर द पर्सन इज़ डूइंग स्क्वैशिंग, ठीक है, वो स्क्वैशिंग कर रहा है. लुक एट द नंबर 2.
it's bending. Okay. Number 2 is bending. Number 3 is twisting. ठीक है, वो ट्विस्ट कर रहा है. ट्विस्ट का मतलब होता है मोड़ना. ठीक है, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था, किसी चीज़ को घुमाना या उसको मोड़ देना. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज स्ट्रेचिंग. ओके क्लास. Now look at the activity 1. What you have to do is in the activity 1 is you can identify the man-made things and the natural materials. Write the name of the material and write N means natural and M means man-made in a green box. आपने करना ये है कि ऊपर सारे नाम दिए हुए हैं. प्लास्टिक, मेटल, रॉक, वुड, वुल, पेपर, फैब्रिक, पेट्रोलियम, सैंड, कॉटन, और नीचे आपको पिक्चर्स दी हुई है और इसके अंदर बॉक्सेस दिए हुए हैं. उस बॉक्सेस के अंदर आपको करेक्ट नेम लिखने हैं कि ये क्या है. ठीक है. और जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं उसके अंदर आपको एन या एम लिखना है. एन का मतलब होता है ये नेचुरल है, या एम का मतलब होता है ये मैन मेड है. अब आपको आइडेंटिफाई करना है, खुद आइडेंटिफाई करेंगे आप, और फिर आप उसमें एन या एम लिखेंगे कि ये नेचुरल रिसोर्सेज है या ये मैन मेड थिंग्स है. ओके स्टूडेंट्स. इन द एक्टिविटी 2 व्हाट यू हैव टू डू इज़ आइडेंटिफाई एंड राइट द करेक्ट शेप. करना आपने ये है स्टूडेंट्स कि ये पिक्चर है. इस पिक्चर के अंदर आपको 4 डिफरेंट मोड्स दिए हुए हैं. एक पिक्चर के अंदर जो है वो ट्विस्ट हो रहा है, एक पिक्चर के अंदर स्ट्रेचिंग हो रही है, एक पिक्चर के अंदर बेंडिंग हो रही है, और एक पिक्चर के अंदर स्क्वैशिंग हो रही है. आइडेंटिफाई करना है. नीचे बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आपको सिर्फ आंसर देने हैं. आंसर हैज़ बिन गिवन टू यू. ऑलरेडी नीचे आपको जो है वो नीचे आंसर्स दिए हुए हैं. आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है और सिर्फ आपको जो है वो लिखना है कि ये ट्विस्टिंग है, स्ट्रेचिंग है, बेंडिंग है या स्क्वैशिंग है. ओके स्टूडेंट्स. नाउ इन द एक्टिविटी 3 it's a choose the correct answer. Number 1 is we can use material to change its shape by number A twisting, number B laying, number C throwing. Number 2, a natural resource is something that is found in number A lab, number B nature, number C toys. Number 3 is we use natural materials to make other materials are called number A testing materials, number B checking material, number C man-made materials. Okay, so please Students, kindly do this activity in your all copies, understand okay, all and the write the points correct answer. up till now. Inshallah, we will cover the further topics in the next presentation. Thank you for watching my video. Bye for now and wait for next presentation. Bye. Allah Hafiz.